Good morning, student. I hope that you have seen the last video about the conservatism. I have explained the differences between the conservatism and liberalism. You know very well, liberalism want to make a nation state and independence and constant government. They are inspired with the ideology of France. They have welcomed to the step of France which have taken by the Napoleons in that time. They have produced the civil code and the uniformation of the different way like as a measurement, nations, currencies and so on. Liberals want to change this and they want to independence against the monarchical rules and regulations. After that, the defeat of the Napoleons, you know very well, conservatives have come into power. They have established the global empires. They have established the global empires and they both imposed the many restrictions of the revolutionaries. After all, the revolutionaries go to the underground. Conservative have imposed the censorship. Revolutionaries go to underground to protect himself. They have established their secret societies. The secret societies to work for the ideology of liberalism. In their time, the Gypsy India became in Italy. He was also revolutionaries. They have met two societies. He also went exiled from the countries. They have made two societies for the revolutionaries as Young Italy in Marseille and Young Europe in Bern. I want to explain key differences of the conservatism and liberalism ideologies have spread the feeling of nationalism in whole countries in people. The controversy always developed the feelings which against each other. So that kind of feeling have rising in Europe. In Europe, you know very well there are the different societies are developed for the liberalism ideologies. France, Germany, Italy, Hungary. Also, they are the liberalism has made the different societies. They produce the ideologies of the freedom of the nation. तो ये जो फीलिंग्स नेशन की जो डेवलप हो चुकी थी जिसे लिबरलिज्म मोनॉर्च के अगेंस्ट करता था कि मोनॉर्च के अगेंस्ट हम इस्टेब्लिश करें अपनी गवर्नमेंट को, तो यही चीज़ें धीरे धीरे हर कंट्री में डेवलप हुई एंड एट द टाइम जिसे द एज ऑफ रिवोल्यूशन इन 1830 to 1840 in that time when the different countries the revolution begins that against the monarchical state के अगेंस्ट वहाँ पे रिवॉल्ट शुरू हो गए। तो ये जो सारे रिवॉल्ट जो स्टार्ट हुए इनका जो इन्फ्लुएंस आया था 1815 में एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट Vienna Treaty of Vienna has imposed the many restrictions to the France. They are bounded by the different countries. You know about the North Netherlands, Wales, Piedmont and so on. तो यहाँ पे वो जो फीलिंग्स जो नेशनलिज्म के डेवलप हुई थी और यूरोप में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी और इसका एग्जाम्पल इसके साथ साथ आपके जर्मनी, क्योंकि अब इटली जर्मनी की बात वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य था, उसके साथ साथ यहाँ पर जो सबसे अधिक आप जो यूरोप में भी फैला था वो ग्रीस तो ग्रीस में भी ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट जो है वहाँ पर भी ऑटोमन साम्राज्य का वो भी एक पार्ट था ग्रीस, वहाँ पे भी लिबरलिज्म की फीलिंग्स का असर ये हुआ कि वहाँ भी मोनोर्स के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट शुरू हो गया। तो जहाँ पे वो रिवॉल्ट शुरू हुआ था तो उन रिवॉल्ट में सबसे बड़े जो स्टेट को फीलिंग्स को स्प्रेड कर रहे थे वहाँ के पोएट्स, वहाँ के एजुकेटेड पर्सन्स, वहाँ के
लोग जो कि अपने नेशनल फीलिंग्स को वो डेवलप करते बाय द हिस्टोरिकल प्रिविलेज, बाय द लैंग्वेज, बाय द पोएट्री एंड सेंस ऑफ देयर द स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज। तो वो जो अपनी पुरानी सभ्यता को बता रहे थे, फिर उसके बाद जो है कि अपने जो गाथाओं को बता करके लोगों के बीच में भावनाओं को उत्पन्न कर रहे थे कि हम एक नेशन के रूप में डेवलप हो या एक आज़ादी के तौर पर चले। इसका असर क्या हुआ कि इन्हें जो है ग्रीस वालों को बेस्ट, चूँकि इनका भी एक डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो ग्रीस वालों का उनको यूरोपियन लोग, अन्य यूरोपियन लोगों का भी सपोर्ट हुआ। और इस सपोर्ट में जो मुस्लिम के भी यहाँ पर देश में वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम की फीलिंग मिला के, चाहे रिलीजियस सेंटिमेंट को भी ला करके उसके अगेंस्ट जो है जनमत बनाया गया, पब्लिक ओपिनियन को डेवलप किया गया। और एटलीस्ट यहाँ पे वी एक्सप्लेन अबाउट द लॉर्ड ब्यान, English poet Lord Byron has also went to fight for the Greece against the Ottoman Empire, against the Muslim rulers। तो जो वहाँ पर इसके अगेंस्ट वो लड़ने के एटलीस्ट दे हैव कलेक्टेड द फंड फॉर द वॉर, एटलीस्ट दे हैव डाइड, वो मर भी गए। बट यहाँ पर जो उन्होंने है कि जो ग्रीस में ये चीज़ें शुरू हुई, यूरोपियन कंट्री ने उसका फेवर किया। यूरोपियन कंट्री जो इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्यान का वहाँ के लिए कलेक्ट करना, मनी को कलेक्ट करना वहाँ युद्ध के लिए है ना, ये शो करता है कि ग्रीस के उस रिवॉल्ट को यूरोपियंस कंट्री सपोर्ट कर रहे थे। तो अब उनके बीच एटलीस्ट द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटाइन में, जिसे आज कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते हैं, इन 1832 तो 1832 में जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, यानी उसे स्वतंत्रता मिली। तो एक ये शो कर रहा है कि जो फीलिंग्स थी लिबरलिज्म की या जो नेशन स्टेट की फीलिंग्स थी, उसने किस तरह से एक जनमत को तैयार किया, एक मनोज के अगेंस्ट किस चीज़ कैसे किया और कैसे वो इंडिपेंडेंट हुए। तो ये जो पोएट्स के थे, जो लिटरेसी थे या लिटरेचर्स थे, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया नेशनलिस्ट की फीलिंग्स को। नाउ अब we talk about the literature or about the poets, how they produce the feeling of nationalism in a people. They have exposed the history of the warriors. They have exposed the great privilege of their countries by the poetry, by the drama, by the discussion, by the romantic imagination of the nationality। और ये जो poets थे ये हर चीज़ को अपने अपने तरीके से करते थे। तो लेकिन उस टाइम poets have started the romantic imagination, यानी एक कल्पना, रोमांचक कल्पना की गई कि ऐसा है हमारा देश, ऐसा होना चाहिए, इस तरह की कल्पना है लोगों में जोश भरने के लिए, लोगों को ये फ्लोरिश करने के लिए इस तरह की गई। और ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन हो रहा था, जो इस कल्चर का जो रोमांटिक इमेजिनेशन हो रहा था, उसका मेन फोर्स जो था क्या था कि We are talking about the romantic imagination। तो रोमांटिक कल्चर मूवमेंट जो उस समय स्टार्ट हुआ था इन दैट टाइम, तो ये मूवमेंट ने डेवलप किया किस चीज़ को, नेशनल सेंटिमेंट को। तो सेंटिमेशन यानी जो लोगों के अंदर की जो भावनाएं तो उनको जागृत करने की कोशिश की। और इस कल्चर रोमांटिक कल्चर मूवमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल सेंटिमेंट एंड आर्टिस्ट और पोएट
उस समय उन चीज़ों को दे हैव क्रिटिसाइज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, दे हैव क्रिटिसाइज द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ किंग्स, they also because they wanted to the collective belonging and focus the emphasis of create a collective belonging along with the nation, yeah, along with the heritage culture, along with the common culture. तो ये है emphasis to the those factors which can rise to the feeling of nationalism, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी जो एम्फेसिस जोर देना था, जो रोमांटिक पोएट्स थे इनका जो मेन फंक्शन था इसको कि अब इसके लिए दे हैव यूज्ड द वर्नाकुलर लैंग्वेज, मीन्स उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी कि क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोड्यूस किया जाए, क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर रचनाएं की जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको समझ सकें। So they have emphasized the vernacular language and connection of the local to carry the modern nationalism. और जो मॉडर्न लोग थे जो अपने साइंस को डेवलप कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे थे, मॉडर्न सिटी की बात कर रहे थे, तो उनको जोड़ने के लिए वो कि इस चीज़ को कि उनके जो ग्लोरिफिकेशंस थे उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने पॉप फेयर के जरिए, नृत्य गाना के जरिए, अपने नेशनल नीतिज के या उनके राइम्स के जरिए उनको मोटिवेट किया, ठीक, जैसे रोमांटिक कहानियों में किया गया था उस तरह किया गया था। तो जो ड्रामा ओपेरा वगैरह की बात यहाँ तक में की जाती है कि लॉर्ड ब्रेव उसके एक ओपेरा के द्वारा उनके चीज़ कल्पना की गई, कोई पोएट था, संगीत ओपेरा, संगीत बनाया गया, संगीत के जरिए तमाम तरह की रचनाएं की गई एंड सो ऑन। तो इस तरह यहाँ पर रोमांटिक के जरिए इसको किया। और यहाँ इसका एग्जाम्पल इसका क्या हुआ कि पोलैंड, इन दैट टाइम पोलैंड was a portion divided among the Russia, Persia and Italy। जो पोलैंड रशिया, पार्शिया और इटली के बीच में डिवाइड था, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज अपनी चीज़ों को इम्पोज कर रहे थे। वहाँ की भाषा पोलिश थी, उसको ख़त्म करके रशियन भाषा को एक्सप्रेस किया जाता। तो वो जो डोमिनेंट पावर्स थे वो वहाँ पर अपने को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते। तो यहाँ पे चूँकि अब उस चीज़ का असर तो हर जगह हुआ, तो पोलैंड में भी उससे असर पड़ा इन चीज़ों, जो ग्रीस में हुआ, जो फ्रांस में हुआ, उनका असर हुआ। तो अब Poland was not exist against this dominant power. How they fight? They have fight against this dominant power through the language, through the music, and through the national proud privilege of common cultures। तो उसने क्या, अपने फ्रांस ने उन चीज़ों को डेवलप किया कि अपने भाषा के जरिए उसे डेवलप किया, अपने म्यूजिक के जरिए डेवलप किया कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स हो, और कंटिन्यू उसने इंडो रशिया और इन सबों का अपोज किया। स्कूलों में पोलिश भाषा को रोक दिया गया, रशिया भाषा अनिवार्य कर दी गई। तो उसके अगेंस्ट कि हमारी पहचान क्या है, they could not fight against the dominant power with the weapons, so they have taken the weapons in a formation of language, music and nationalist heritage feelings and common cultures। तो इस तरह वहाँ पर उन्होंने एटलीस्ट अपने आप लड़ाइयाँ जारी रखते चले गए। तो ये हम देख रहे हैं कि नेशनलिज्म की राष्ट्रीय भावना को कैसे डेवलप किया गया, किस तरह राष्ट्रीयता की भावनाएं यूरोप में जन्म ली, किस तरह से इन लोगों ने राष्ट्रीयता के अपने देश को समृद्ध कराया। इसे अब इनके बीच में एक और प्रॉब्लम आ रही थी, इधर नेशनलिज्म की बातें आ रही थी, उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में शुरू हो चुका था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था तो एक कहावत है कि अब जैसे अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो जो भी एक
वर्ग था, एक नया वर्ग, यू नो read about the, you have also read about the middle class. New middle class are belonging with the servicemen and they have belonged to the special class of group work and services. तो ये जो नया क्लास डेवलप हुआ तो इसके साथ साथ जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, एक ट्रेडिशन बढ़ता है, लोगों के वहाँ पे शहरों की तरफ माइग्रेट होता है, तो उन जगह वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे वो हार्डशिप आ गई। तो 1830 का पीरियड जहाँ उधर रिकॉर्ड हो रहा था, वहाँ एक गंभीर समस्या भी जन्म ले रही थी, जो कि भुखमरी के साथ भी और तमाम कठिनाइयों के साथ गंभीर हुई, बिकॉज द मोर पॉपुलेशन है वो देयर। तो वहाँ पे पॉपुलेशन की बहुत तेजी थी, तो शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ। तो शॉर्टेज ऑफ फूड का रिजल्ट क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, तो उससे जब शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ तो मास पीपल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, मास पीपल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स थे उनके बीच में भी एक आक्रोश हुआ, एक तरह की भावनाएं डेवलप हुई और वो भी रिवॉल्ट में शामिल होने लगे। उनका रिवॉल्ट अगेंस्ट था उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से। एटलीस्ट दे हैव बिकेम 1814 पेरिस में वो जो लोग उनके अगेंस्ट आ गए संकट। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक तरह से जो डेवलप कर रही थी कि एक फीलिंग जो अगेंस्ट इस्टेब्लिश मोनार्क्स या डोमिनेंट पावर्स के अगेंस्ट थी। दे वांट टू द freedom from that the ruling parties which are also established as an aristocrat. ठीक, okay. Next I will in next video I will read about that revolution and what happened after the revolution in Germany, Italy and Britain. You see my next video.